Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the first part of our 17th lecture. In the previous lecture, we have studied random variable, discrete probability distribution function, and discrete cumulative distribution function. A random variable हमारे पास क्या है? A real valued function defined on the sample space of random experiment is a random variable. There are basically two types of random variable: discrete random variable and continuous random variable. Next हमारे पास क्या था कि probability distribution of a discrete random variable is known as discrete probability distribution or probability distribution function, and the cumulative distribution function of a discrete random variable is known as the discrete cumulative distribution function. What is the difference between the probability distribution function and cumulative distribution function? When we say some number is a probability distribution function at x is equal to x, it means it is the probability of occurrence at x is equal to x, or let's say x is equal to 1. But when we say it is a cumulative distribution function for x is equal to 2, it means it is the sum of all the probabilities of x less than equal to x. If we say x is equal to 3, then cumulative distribution function is probability of x is less than equal to 3. When we write it, we say it will be probability of x is equal to 2, and it will be write it as f of 2, that is equal to probability x is less than equal to 2. And when we write x is less than equal to 2, it means probability x is equal to 2 plus probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 0. Probability डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें सिर्फ उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की एक्यूरेंस बताता है, और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की लोअर वैल्यू है वहां से उस पर्टिकुलर वैल्यू तक का की प्रोबेबिलिटीज का सम हमें बता देता है. आज हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड द कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Expected value and variance of discrete random variable. What is expected value? Expected value is same as we have learned the mean in the statistics portion. In statistics portion, when we are study variable, there we use a word mean, while in probability we use expected value. The interpretation is same, the meaning is same. The expected value or mean of a discrete random variable is defined as mu is equal to expected value of x. जब हम mean कहते हैं तो हम इसको mu से represent करते हैं. हम expected value कह रहे हैं, it can expected value of x is equal to sum of x into probability of x. The variance of a discrete random variable is a measure of variability and is defined as sigma square is equal to expected value of x minus mu whole square. When we open it, it is summation x minus mu whole square into probability of x. जब हम इसको further ओपन करते हैं इस समेशन को, तो इट विल बी summation
x square into probability of x minus summation x into probability of x whole square. ओके, और हम ये जो फर्दर एक्सपेंडेड फॉर्म है यही फॉर्म यूज करेंगे टू फाइंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें मैथ्स का पोर्शन, स्टैट्स का पोर्शन, तो उसमें हमने एक्स बार पढ़ा था. एक्स बार विच इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ठीक है, और जो वेरिएंस था हमारे पास दैट वाज वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. ये दो फॉर्मूलास हमने पढ़े थे, मीन एंड वेरिएंस के होल स्क्वायर. और अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी मीन कुछ उसी तरीके से फाइंड आउट हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी है, इस वजह से ये डिवीजन वाला पार्ट जो है वो एक्सक्लूड हो गया. और जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो जब हमारे पास वेरिएबल था फ्रीक्वेंसी थी तो फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी. यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सेम इज द केस यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल की वैल्यू थी उसका हम स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पे आपके पास रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर होगा और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीन का हमारे पास ये स्क्वायर होता था, ये मीन का फॉर्मूला एक्स बार का, तो एक्स बार स्क्वायर. ये भी हमारे पास मीन का फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे इसकी ये फॉर्म भी लिखी हुई होगी, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्म भी आप देखेंगे हमारे पास बुक्स में लिखी भी होगी. ठीक है, आप किसी भी किस्म की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं. डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास f of 0 is equal to 1 by 16, f of 1 is equal to 1 by 4, f of 2 is equal to 3 by 8, f of 3 is equal to 1 by 4 and f of 4 is equal to 1 by 16. हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस. जब हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो हम देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले expected value of x is equal to summation x into probability of x. ये समेशन हमने फाइंड आउट करना. ठीक है, तो हम क्या पहले कौन सा कॉलम बना लेंगे, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x को कॉलम बना लेंगे. x हमारे पास हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है, x की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 0 1 2 3 4. ओके,
4. नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x. क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 1/16 एंड सो ऑन. अब हम नेक्स्ट कॉलम फाइंड करेंगे x इंटू पी ऑफ x का. ठीक है जी. हमारे पास क्या आ जाएगा? x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? फर्स्ट वैल्यू बिल्कुल जब हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं 0. नेक्स्ट विल बी 1/4. नेक्स्ट विल बी 6/8. 3 हम इस कॉलम का सम ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट विल बी 8/4. ठीक है. इस कॉलम का आप सम ले लेंगे, ये हमारे पास 8/4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2. तो ये हमारे पास क्या आ गई? दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ और गिवन डाटा. जब हमने वेरिएंस फाइंड करना है तो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे. उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने कौन सा कॉलम बनाना है? x स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. ये कॉलम अब हमने बनाना है. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? अगेन 0. सेकेंड विल बी 1/4. नेक्स्ट विल बी 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे 4. 4 3s are 12. 12/8. 3 का स्क्वायर 9. 9/4. 4 का स्क्वायर 16. 16/16. ठीक है. इस कॉलम का हम सम ले लेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सम हमारे पास आ जाएगा 20/4. तो ये हमारे पास क्या आ गया? 20/4 इज इक्वल टू 5. 5 minus 2 square that is equal to 5 minus 4 which is equal to 1. तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस क्या आ गया? गिवन डाटा के लिए 1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या थी? मीन दैट वाज 2. ठीक है. तो ये हमारे पास दोनों फाइंडिंग्स आ गई. अगर हमें कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें तो हम क्या करेंगे? सिंपली वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे. तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1. ऐसा नहीं है कि सिग्मा और वेरिएंस एक जैसा होगा. सॉरी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही वैल्यू होगी, डिफरेंट होती है. यहाँ पे क्योंकि वेरिएंस 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. ए शिपमेंट ऑफ 8 सिमिलर माइक्रो कंप्यूटर्स टू ए रिटेल आउटलेट कंटेन 3 that are defective. If a school makes a random purchase of 2 of these computers and x is the number of defectives, then find the expected mean and variance. हमारे पास दो तरह के कंप्यूटर्स हैं in a box, in a shipment, defective and non-defective. Okay? Defective computers हमारे पास कितने हैं? 3. 8 7 3 of that are defective.
हमारे पास नॉन डिफेक्टिव कितने हुए 5 बिकॉज जो टोटल हमारे पास कंप्यूटर्स हैं दैट आर 8। हम सेलेक्ट कितने कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं हम 2, ठीक। और हमने फाइंड क्या करना है, इफ x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या हमारे पास डिफेक्टिव्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करना है। हमने एक्सपेक्टेड मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है सिग्मा स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट इज summation x into probability of x. And what is the formula of variance, that is expected value of x square into minus expected value of x whole square. ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज है, 2 का सैंपल है और हम डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, सैंपल में एक डिफेक्टिव हो, सैंपल में दोनों के दोनों कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी प्रोबेबिलिटीज, और हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटीज थी इसकी, (28) 15/28 एंड 3/28, ठीक है। हमने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट हम कॉलम बनाएंगे x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, और सेकेंड हमारे पास कौन सा कॉलम आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये दोनों कॉलम आप लोग कंप्लीट करेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में और इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट, थैंक यू।